جی السلام علیکم. مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. شل آئی اسٹارٹ؟ پلیز بتا دیں تاکہ پھر اس حساب سے میں شروع کروں. جی تھینک یو ویری مچ عائشہ. آج ہمارا سیشن جو ہے وہ آن لائن کس طرح سے کلاسز دی جاتی ہے اس کے اوپر ہے. آن لائن کلاسز جو ہیں وہ بڑے مزیدار چیز ہے. بس اس کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. چیلنج ہے مگر ٹیچروں کے لیے چیلنجز جو انہیں ملتے ہیں وہ تو ان کے روزمرہ کا کام ہے نا. ان کے پاس چیلنجز آتے ہیں اور وہ اس کو الحمدللہ اوور کم کر لیتے ہیں. اللہ نے ٹیچروں کو یہ بڑی صلاحیت دی ہے کہ کوئی بھی چیلنجز آ جائے ان کے پاس وہ اس کو الحمدللہ اوور کم کر لیتے ہیں. کچھ ٹیچر جلدی کرتے ہیں, کچھ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں, مگر الحمدللہ وہ کر لیتے ہیں. آن لائن ٹیچنگ کا جو سلسلہ ہے وہ کووڈ سے شروع ہوا. اس سے پہلے بھی ہوتی تھی آن لائن, مگر کووڈ کے زمانے میں آن لائن ٹیچنگ جو تھی وہ عام ہو گئی اور الحمدللہ ٹیچروں نے سیکھا ان سے. کچھ کی ٹریننگ جو تھی, کچھ ٹیچرز جو تھے وہ بہترین اپنا آن لائن کلاسز کر رہے تھے, کچھ سٹرگل کر رہے تھے. تو سب نے کچھ نہ کچھ کیا. سو گیو یور سیلف اے پیٹ ایٹ the بیک کہ آپ لوگوں نے گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کیا. اب کیسے کیا, اچھا کیا, برا کیا, نہیں کیا, وہ ایک الگ بات, ہم اس میں نہیں جا رہے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ کس طرح سے دی جاتی ہیں, کون کون سے چیلنجز آپ جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گے اور کس طرح سے آپ نے ان کو اوور کم کرنا ہے. تو مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز کو ٹیچرز جو ہیں وہ کس طرح سے ان چیلنجز کو کس طرح سے اوور کم کریں گے. تو یہ ہمارے آج کا جو سیشن ہے یہ اس کے اوپر ہے کہ آپ ایز اے ٹیچر کس طرح سے پریکٹیکل اور افیکٹو آن لائن کلاسز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رائٹ ویژن اکیڈمی جو ہے ہماری یو کے میں ہے اور الحمدللہ ہم یہاں سے پاکستان کے اندر, آزاد کشمیر میں اور دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں.
اور آج سے نہیں کر رہے, کئی سالوں سے کر رہے ہیں. تو یہ ہم رائٹ ویژن اکیڈمی ہمارے اپنے کورسز ہیں, اور ہمارے سارے کے سارے کورسز جو ہیں وہ یہاں کے سی پی ڈی ایکریڈیشن ہے سے ٹیسٹڈ ہیں. ہم سی پی ڈی کورسز ڈلیور کرتے ہیں. تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, یہ ہم کرتے ہیں. میرا نام اسجد شیخ ہے, اور میں جو ہوں یہاں پہ رائٹ ویژن اکیڈمی کا CEO ہوں, اور ہماری جو ہے ASKF کے ساتھ کولیبریشن ہوتی ہے, اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. مجھے ریسنٹلی لاسٹ ایئر پاکستان کے اندر اچیومنٹ ایوارڈ مل چکا ہے, اور یہ ہمارا اس کے اندر میڈیا کے اندر, پریس کے اندر یہ اخبار میں آیا تھا. تو پچھلے سال مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. 2020 کے اندر الحمدللہ مجھے گلوبل ایوارڈ بھی ملا ہے ایجوکیشن کے اندر. تو یہ میرا چھوٹا سا جو ہے وہ تعارف ہے. میں پاکستان سے ہوں, کراچی سے, اور یو کے میں مجھے رہتے, میں 1990 میں آیا تھا یو کے میں, اور سنس دین یہاں پہ ہم ہوں. میٹنگ کے کچھ رولز ہیں, اپنا مائک کو بند کر لیجئے گا پلیز. اب یہاں پہ کیمرے, تو یہ کیمرے آن ہونے چاہیے تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں, آپ ہمیں دیکھ سکیں. آپ نے کویسچن کرنا ہے, ہاتھ ریز کر لیجئے گا, ہم آپ کو ٹائم دیں گے. نوٹس بہت ضروری ہے, نوٹس لیں آپ, اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ جو ہے بیٹا وہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس رسپیکٹ ہوتی ہے, ہم رسپیکٹ دیتے ہیں. آبجیکٹو جو ہے آج کی ورک شاپ کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے آن لائن لیسن کیسے دینے ہیں, کس طرح سے کلاس روم کے جو چیلنجز ہیں وہ دیکھنے ہیں, اور کون سے سمپل ٹولز جو ہیں وہ ہم اعتماد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایز اے ٹیچر ہمارے جو ٹولز ہیں ان کے اوپر ہماری ماسٹری نہیں ہے تو پھر ہم اسٹرگل کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو آج ہم اس میں کور کریں گے. آن لائن کلاسز جو ہے یہ بہت بڑا فیلڈ ہے. اس کو 1-1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کو 1-1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے کے اندر پوری ترتیب نہیں بتا سکے گا. 1-2 گھنٹے کے اندر کیا ہم آپ کو بیسک چیزیں آپ کو بتا پائیں گے, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. پریکٹس آپ نے کرنی ہے. ایز اے ٹیچر آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے پریکٹس کرنا اور سوال کرنا. آپ کو چیلنج کہاں پہ آ رہا ہے, کس طرح سے آ رہا ہے, تاکہ آپ اس کو, تو یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں, آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارا جو ہے آبجیکٹو ہے. آج کا جو ایجنڈا ہے اس میں 5 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو آن لائن ٹیچنگ کی ریالٹی کیا ہے, کامن چیلنجز کیا آتے ہیں, پریکٹیکل اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کیا ہیں, آپ کے ٹولز کون سے آپ نے استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ کو نیکسٹ سٹیپ آپ کے پاس سپورٹ کون سی آپ کو اویلیبل ہے. دیکھیں سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر سپورٹ کے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. اب سپورٹ کیا ہے, اس کو آپ اس طرح سے, آپ کی ٹرمینالوجی میں اگر میں بات کروں تو سپورٹ بیسکلی اسکیف ہولڈنگ ہوتی ہے. جس طرح آپ بچوں کی لرننگ میں اسکیف ہولڈنگ کا استعمال کرتے ہیں, اس طرح سے ٹیچروں کو بھی اسکیف ہولڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے.
तो आपके पास कौन सी स्पॉट अवेलेबल है उसको भी हम देखेंगे। रियलिटी ऑफ ऑनलाइन टीचिंग जो है, जब आप ऑनलाइन चीजें करते हैं तो बेसिकली आप फिजिकल से वर्चुअल में आ जाते हैं, और जब हम वर्चुअल दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया की अपनी जरूरत है। आपको उन चीजों का इल्म होना चाहिए। अगर इल्म नहीं है तो हम स्ट्रगल करेंगे। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है, क्योंकि एज ए टीचर अनफॉर्चुनेटली आपको एज ए टीचर बता दिया जाता है कि आपने ऑनलाइन क्लास देनी है। कुछ इदारे हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो टीचरों को ऑनलाइन क्लासेस से पहले ट्रेन करते हैं, उन्हें बताते हैं, समझाते हैं। उनका जो खौफ है, देखिए ऑनलाइन चीजें करना, यहाँ पे भी सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो फियर का आ रहा है, क्योंकि टीचर्स दे आर नॉट यूज टू कि कैमरे को देख के बात कैसे करनी है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं, कैमरे को देख रहे हैं, कैमरे से बात की जा रही है। तो ये इसको भी आपने इस फियर से भी आपने बाहर निकलना है। अब जब ये सारी फिजिकल जो होती है ना, फिजिकल के अंदर जब आप फिजिकल क्लासरूम के अंदर हैं तो आप जब लेसन दे रहे हैं तो आप अपनी जो आपकी मास्टरी है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उससे आप जो आपके सामने जो 30-35 बच्चे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस बच्चे को समझ में आ रहा है, कौन सा बच्चा कंफ्यूज है, कौन सा बच्चा मेंटली क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो फिजिकल क्लास के अंदर तो ये चीजें हो सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि जब आपकी आई कांटेक्ट नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा ना, हम चाहते हैं कि आपके कैमरे ऑन हो ताकि हम आपको देख सके, आई कांटेक्ट कर सके, समझ सके कि आपके कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये पर्पस होता है ऑनलाइन में कैमरों को ऑन करने का, कि हम देख सके, क्योंकि फिजिकल क्लास के अंदर तो ये चीज मुमकिन है, ऑनलाइन ये चीज मुमकिन नहीं है। और जब आप फिजिकल क्लास के अंदर होते हैं, आपने किसी बच्चे से क्वेश्चन किया तो आपका वो बच्चा आपको रिप्लाई करता है ना, जवाब देता है। ऑनलाइन के अंदर ये चैलेंज आ जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कैमरा ऑफ कर देते हैं। टीचर जो है उसको पता ही नहीं है कि बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चा आपकी बात को सुन रहा है या नहीं है। हो सकता है जब बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ है, कैमरा उसका बंद है, पता चला वो नाश्ता कर रहा है। तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम जब ऑनलाइन क्लास दें तो अपना जो है इन चीजों को आप सेट करें, देखें कि क्या जो बच्चा जिसने लॉग इन तो कर लिया है, क्या वो फिजिकली भी आपके साथ मौजूद है या नहीं है। ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बास बच्चे कहेंगे सर मिस हमारा कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा काम नहीं कर रहा, या माइक जो है वो काम नहीं कर रहा। तो ये टूल्स है, ये ब्रिज है। मैंने कहा ना कि जब हम फिजिकल से वर्चुअल में आते हैं तो वर्चुअल दुनिया की अपनी रिक्वायरमेंट है।
ये चीजें हैं जो जिसके बगैर आप काम नहीं कर सकेंगे। बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि कैमरा ऑन कैसे करना है और कैमरे पे माइक पे बात कैसे करनी है। अगर आज के दौर में आपको बच्चा ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा है कि मिस मुझे नहीं पता कि टेलीफोन के ऊपर जूम को किस तरह से लॉग इन करना है, या ये जो है आज जिस तरह से ये हमारा हो रहा है इसमें किस तरह से आना है, तो वो आज की जनरेशन जो जी है बेटा और जनरेशन अल्फा है, इनको सब पता है, इनको सब आता है, बस ये आपको कह रहे हैं कि हमें नहीं आता। तो आपको इस चैलेंज का जवाब आपके पास होना चाहिए। पेरेंट्स को आपने इंगेज करना है। जब हम वर्चुअल दुनिया में आ गए हैं तो हम अकेले काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वर्चुअल दुनिया के अंदर स्पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो स्पोर्ट आपको आपके टूल्स देंगे, आपको आपके गियर्स देंगे, आपको आपकी ट्रेनिंग देंगी, आपको पेरेंट देंगे। ये सब लोग जो है आपको आपका जो है हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब हम जाके आगे बढ़ सकेंगे। अब चैलेंज जो आता, एक तो ये चैलेंजेस है ना, दूसरे चैलेंजेस जो आते हैं वो इंटरनेट का कनेक्शन के ऊपर आते हैं। जब हम लोग, मैंने 1920 के अंदर आजाद कश्मीर में मैं टीचरों को ट्रेन कर रहा था, तो हमें वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा था वो इंटरनेट के कनेक्शन का आ रहा था। आज भी मैं जब आजाद कश्मीर में टीचरों को ट्रेन करता हूं तो मुझे आज भी सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है इंटरनेट का आता है। किसी इलाके में इंटरनेट है, किसी में नहीं है। वहाँ की जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, किसी का बैंडविड्थ अच्छी है, किसी की नहीं है। तो ये चैलेंजेस आते हैं। अब ये भी आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, मगर आपको जो है इसको मैनेज करना है। किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये आप देख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे इसमें इंटरनेट में बैंडविड्थ का कमाल होता है। अगर कोई बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है मगर उस बार बार लॉग ऑफ हो रहा है या बात कट रही है, तो आप उससे कह सकते हैं बेटा आप अपना कैमरा बंद कर दें, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है तो बैंडविड्थ का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें जो है आपको चेक करनी है, देखनी है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन के अंदर आपने जिस तरह क्लास के अंदर फिजिकल क्लास में आप बच्चों को इंगेज करते हैं ना, इसी तरह ऑनलाइन भी आपने बच्चों को इंगेज करना है। ये सबसे बड़ी जो रियलिटी है। जब आप ऑनलाइन बच्चों से बात कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें इंगेज करेंगे। बगैर इंगेज किए हुए बच्चे के साथ आप आगे अनफॉर्चुनेटली नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये रियलिटी है। अब जो है, जब आप ऑनलाइन चीजों को, ऑनलाइन जब लेसन दे रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका लेसन है वो छोटा है। ज्यादा बड़ा लेसन नहीं चाहिए हमें, छोटे छोटे लेसन चाहिए। आप जो फिजिकल क्लास के अंदर मिसाल के तौर पे 45 मिनट का या 1 घंटे का जो लेसन देती थी फिजिकल
टाइम में अगर 1 घंटे का लेसन दे दिया तो ऑनलाइन आप 1 घंटे का लेसन नहीं दे पाएंगे। आपको वो लेसन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत खींचा तो आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपका बच्चे का फोकस नहीं रहेगा और उसमें आपको भी चैलेंज आएगा। तो ये जो है आपको अपने लेसन जो है, एक तो वो छोटे करने हैं और आपने लेसन ऑनलाइन के बनाने हैं, फिजिकल क्लास के नहीं बनाने। आप मिसाल के तौर पे इसको आप इस तरह से समझिए कि आपने किसी शादी में जाना है, तो शादी में जाने के लिए आप अपने अच्छे से खूबसूरत ड्रेस का इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि आपने शादी में जाना है। आप शादी के अंदर अपना घर के लॉन का जो जोड़ा आप पहनते हैं घर के इस्तेमाल, वो पहन के तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग होता है, उसकी तरतीब अलग होती है, उस हिसाब से हमें चीजें करनी पड़ती हैं। तो जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपने अपने लेसन को छोटा करना है। इसीलिए जब कोविड के अंदर जब लेसन दिए जा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो सब स्कूलों ने, बोर्ड वालों ने आपका जो करिकुलम था उसको छोटा कर दिया था। आ रहा है समझ? क्योंकि अगर 1 घंटे का लेसन है तो ऑनलाइन तो दिया नहीं जा सकता, साल के अंदर सारी चीजें खत्म कैसे होंगी, कवर कैसे होगी। तो इस वजह से करिकुलम को छोटा किया गया था, ताकि जो बकाया करिकुलम है वो ऑनलाइन डिलीवर किया जा सके। अब यहाँ पे भी जिस तरह से आपने अपना, आपके पास क्लियर रूटीन होना चाहिए एज ए टीचर, आपके पास इसका क्लियर रूटीन होना चाहिए कि आपने शुरू कैसे करना है, आपने सिखाना कैसे है, आप चेक कैसे करेंगी और आप अपना लेसन को क्लोज कैसे करेंगी। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं बेटा, आपको अपने लेसन प्लान में बनाना है। अब ऑनलाइन क्लासेस का लेसन प्लान भी फिजिकल लेसन प्लान से अलग होगा, मगर इसका बैकग्राउंड, इसकी तरतीब जो है वो वही रहेगी, मगर ये छोटा हो जाएगा। जैसे आप क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास के अंदर पहले जब लेसन देना शुरू करती हैं तो आप बच्चों की प्रायर नॉलेज चेक की जाती है, तो यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। अगर वहां पे आप 20 मिनट का लेक्चर देती थी तो यहाँ पे आपको 10 मिनट की लेक्चर देना, मगर अब 10 मिनट के अंदर जो चीज आप देने जा रही हैं, तो एज ए टीचर ये आपने मेक श्योर करना है कि वो चीज बच्चे को मिल गई है, और ये चीज आपको आपका जो एलओ है, लेसन ऑब्जेक्टिव जो है, उसकी तरतीब आपको बनानी पड़ेगी, छोटे छोटे चंक्स में लेके चलना पड़ेगा, और आपको ब्रेक भी देनी है। अब ब्रेक किस तरह से दी जाएगी ऑनलाइन? ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप 5 मिनट के लिए छुट्टी कर देंगे, आप जो लेसन दे रही हैं उसमें ब्रेक लें। ब्रेक के से मुराद क्या है? क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दें, कोई ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू कर दें, तो वो बच्चा जो है वो इंगेज रहेगा, फोकस रहेगा, क्योंकि बच्चों की रिटेंशन जो है वो थोड़ी है बेटा, वो बड़ा थोड़ी देर में जो चीज आप उनको दे सकती हैं वो फौरन पिक कर लेंगे। अगर जहां आपने चीजों को
टूल दी, बच्चा बोर हो जाएगा, डिसंगेज हो जाएगा, और वो जो आपका पर्पस है वो बेकार हो जाएगा। अब जैसे जो नया टीचर होता है ना, वो लेसन देने की प्रैक्टिस करता है। आज भी अच्छे टीचर जो हैं वो अपने लेसन जब देते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करते हैं, लेसन प्लान की प्रैक्टिस की जाती है, तो वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब आप ऑनलाइन अपना लेसन दे रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपने लेसन की प्रैक्टिस की हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई और आपके पास आपके जो गियर्स हैं, जो आपको चीजें चाहिए, वो आपके पास आपके सामने नहीं है, तो आपको बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगी, आपको पता होगा यहाँ पे आपने बोलना क्या है, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल कौन सी देनी है, यहाँ पे आपने असेसमेंट कौन सा देना है, यहाँ पे आपने उसको चेक कैसे करना है, और फिर उसको क्लोज कैसे करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब फिजिकल क्लास के अंदर तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस डेली होती है ना, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, आपको पता है। तो ऑनलाइन क्लास की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम जब आते हैं प्रैक्टिस के मामले में, तो हमें जरा कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास जूम है या गूगल टीम है, तो आप उसमें अपनी कोई कमरा रूम बना के उसके अंदर खुद प्रैक्टिस करो। आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, और इस एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी जो स्टूडेंट्स के लिए है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे हमने सेशन शुरू किया था, उसमें हमने कुछ रूल्स बता दिए थे, और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। आपको एज ए टीचर अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों को बतानी है, बार बार बतानी है, और रीइंफोर्स करना है। अगर बच्चे को आपकी एक्सपेक्टेशन का नहीं पता, तो आपको प्रॉब्लम देगा आपकी क्लास के अंदर। और ये सारी की सारी चीजें सेशन शुरू करने से पहले आपको बताना होता है, आप दे देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो आपको चैलेंज आएगा वो ये आता है कि हम अपने बच्चे को ऑनलाइन जब क्लासेस हो रही होती है एक्सपेक्टेशन नहीं बताते, नंबर 1। नंबर 2, हम जो है जो हमने लेसन देना है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। और तीसरा, हमारे पास जो लेसन होता है उसकी रूटीन का हमें नहीं पता कि एज ए टीचर हम क्या करने जा रहे हैं, कब शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, असेसमेंट क्या होगा। ये सारा का सारा जो टीचर्स हैं उनको इस चीज़ का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इदराक होना चाहिए कि ऑनलाइन किस तरह से करना है। फिर जब हम ऑनलाइन करते हैं तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज भी तो होना है ना। बगैर ऑर्गेनाइजेशन के हम कुछ कर नहीं पाएंगे बेटा। और हम ऑर्गेनाइजेशन के मामले में हम लोग बड़े कमजोर हैं अनफॉर्चुनेटली। हम कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, और बाद में हम एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। हर एक चीज को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि हमने करना क्या है,
कैसे करना है, कहाँ पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, किससे हम मदद माँग सकते हैं, कैसे किया जाएगा, तो ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहे हम अपने आप को। हालाँकि टीचर बड़े ऑर्गेनाइज़ होते हैं, ये भी उनकी एक क्वालिटी है कि उनके पास उनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है चीज़ों को, वो कर लेते हैं। मगर क्योंकि अब हम वर्चुअल उसमें आ गए हैं, तो यहाँ पे हमें चैलेंज आ जाता है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। आपने अपने जो है पास एक फ़ोल्डर बना लेना है और वो आपका मेन फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर आपने अपनी हर एक चीज़ रखनी है। अब ये नहीं कि उठाया और डाल दिया, उठाया और डाल दिया, ऐसा नहीं होगा बेटा। अब चीज़ों को उसमें डालती जाओगी फ़ोल्डर में और डिसऑर्गेनाइज़ तरीके से करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको मिलेगी नहीं। जहाँ पे आपने 10 मिनट का काम था, अब आपने 2 घंटे लगा दिए वो चीज़ ढूँढने में। तो एक मेन फ़ोल्डर बना लें और उसके अंदर जिस तरह से लेसन प्लान का आप एक फ़ोल्डर बना लें, एक आप डेली लेसन का, ये इन चीज़ों के आप फ़ोल्डर्स बना लें। मुख्तलिफ मेन फ़ोल्डर के अंदर मुख्तलिफ फ़ोल्डर बना लें। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने 5 फ़ोल्डर बनाने हैं। आपने अपना मेन फ़ोल्डर बना लिया और उसपे ये 5 फ़ोल्डर बना लिया। अब मसला ये आ रहा है, आप इंग्लिश भी पढ़ा रही हैं, आप साइंस भी पढ़ा रही हैं। आप 4 मुख्तलिफ क्लासों को पढ़ा रही हैं, 5वीं को, 6ठी को, 7वीं को, 8वीं को पढ़ा रही हैं। तो जब आपने फ़ोल्डर बनाना है तो बेटा हर क्लास का अलग फ़ोल्डर बनेगा और जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं उनके भी आपने अलग फ़ोल्डर बनाने हैं। मिसाल के तौर पे आप क्लास 5वीं क्लास को इंग्लिश भी पढ़ा रही हैं और साइंस भी पढ़ा रही हैं, तो आपने एक फ़ोल्डर बनाया 5th क्लास का। अब उसके अंदर जब आप गई हैं तो आपने साइंस का अलग फ़ोल्डर बनाया है और इंग्लिश का अलग बनाया है। अब जो मैथ्स की साइंस की चीज़ें आपने साइंस की चीज़ें उसमें डालनी है। जो आपने इंग्लिश किया है वो इंग्लिश के फ़ोल्डर में जाएगा और उसके अंदर ये सारे के सारे 5 फ़ोल्डर जाएंगे। ठीक है, अब ये फ़ोल्डर आपने पहले, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर ये 6 फ़ोल्डर बना के रख देने हैं। ठीक हो गया, डेस्कटॉप के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये फ़ोल्डर बनाए और डाल दिए। अब ये इसके अंदर जब आपने सारी चीज़ें डाल दी हैं तो अब आप ये डेस्कटॉप पे नहीं रख सकते क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर बड़े हल्के-फुल्की चीज़ें रखी जाती हैं। अब आपकी जो मेन ड्राइव है वहाँ पे आप इसको सेव करें या गूगल पे सेव करें, जहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो सेव कर लें। और ये डेली अपडेट होता रहेगा, आपने क्योंकि डेली क्लास देनी है। तो इस तरह से जब आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और ऑर्गेनाइज होके चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास देना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कहाँ पे कब कैसे आपने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, वो आपको मिल जाएगी। तो ऑर्गेनाइज होना जो ऑनलाइन टीचिंग के में आता है वो बहुत अहमियत है। बगैर ऑर्गेनाइज किए या बगैर ऑर्गेनाइज हुए आपके लिए बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। अब आप मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी वर्कशीट को तलाश नहीं कर पा रहे या जो आपने लेसन प्लान बनाया उसको तलाश नहीं कर पा रहे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस आप अपना टाइम जो है इन चीज़ों की तलाश करने में ही निकाल देंगे जबकि आपको दूसरा काम भी करना है। आगे चलते हैं।
अब ये वही चीज है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। आपकी क्लास जब ऑनलाइन जो क्लास है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर फिजिकल क्लासरूम के अंदर आपके पास 35 बच्चे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जब आएंगे तो 35 बच्चों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर 35 ऑनलाइन ऑफलाइन है, फिजिकल में है, तो ऑनलाइन भी तो 35 आएंगे ना। मगर यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि 35 के 35 ऑनलाइन नहीं आएंगे। तो आपको हो सकता है 30 बच्चे आ जाएं। 35 के 35 मैंने आज तक नहीं देखे कि सारे के सारे बच्चे आ जाएं और एक साथ एक वक्त में नहीं आएंगे। कोई जो है जैसे ही क्लास शुरू होगी उसी वक्त टाइम क्या है, कुछ कोई जो है जब आधी क्लास गुजर चुकी होगी उस वक्त आएंगे। तो ये चीजें आपको मैनेज करनी है कि किस तरह से आपने ये चीज क्लियर करनी है, बच्चों को बताना है। सिर्फ बच्चों को नहीं बताना, उनके पेरेंट्स को भी बताना है कि क्लास किस वक्त शुरू होगी, बच्चे ने क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो ग्रुप है ऑनलाइन का, इसको आपने मैनेज करना है और आपने मेक श्योर करना है कि बच्चा जो है वो क्लास के अंदर या घर के अंदर जहां पे भी बैठा हुआ है वो एक खामोश अपना जो है उसे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही, शोर नहीं हो रहा, किचन में नहीं बैठा हुआ। मिसाल के तौर पे कहने का मतलब जो है वो ये है कि वो किचन में नहीं बैठा हुआ, वो लेटा हुआ नहीं है, अपने बेड पे लेटा हुआ नहीं है, वो बैठा हुआ है। उसको पता है कि ये चीज एज ए टीचर इसको डिलीवर करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है और हुआ भी था। पेरेंट्स के को ये ट्रांसफर करना है अपने पेरेंट को कि बच्चे की जब क्लास होगी मेक श्योर करना है कि वो बच्चे ने नाश्ता कर लिया हो, आराम से बैठा हुआ हो, उसके पास नोटबुक्स वगैरह सारी चीजें हो और शोर ना हो रहा, ठीक है ना। क्योंकि शोर के अंदर आप भी तो क्लास में कहती है ना पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, शोर के अंदर नहीं हो रहा होता ना। तो इस तरह से ये चीजें आपने करनी है और आपने अपनी प्रेजेंस को प्रोफेशनल रखना है, क्योंकि एज ए टीचर हम बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं और हम अपने प्रोफेशनलिज्म का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने बच्चे के साथ जब बात करनी है तो किस तरह से करनी है, आपने बच्चे के पेरेंट्स के साथ आपने जब बात करनी है तो किस तरह से करनी है, आपने अपने जो इदारे हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, उनके साथ आपने कैसे बात करनी है। और फिर ऑनलाइन जब आते हैं तो याद रखिएगा कुछ चीजें रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं। तो अपना प्रोफेशनलिज्म को आपने बड़ा अच्छे से रखना है। आपने जब पेरेंट्स के साथ बात करनी है, कोई चीजें कम्युनिकेट करनी है, तो मेक श्योर करना है कि आपने पेरेंट को प्रॉपर तरीके से उनके साथ चीजों को कम्युनिकेट किया है। इब्हाम नहीं रहना चाहिए। आपका पूरा मैसेज जो है वो पेरेंट ने रिसीव कर लिया है। हमारे सबसे बड़ी जो चैलेंज आ जाता है टीचर्स, पेरेंट, स्कूल के साथ जो चैलेंज आ जाता है वो कम्युनिकेशन में आ जाता है।
कम्युनिकेशन जो है हमारी प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इब्हाम रहता है। जब इब्हाम रहता है, कंफ्यूजन रहती है, तो जो आप आउटकम चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते। तो मेक श्योर करना है कि आप पेरेंट्स के साथ जब बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर कम्युनिकेट हो रही है, क्लियर हो रही है, और उसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशन के बारे में बता सकते हैं, रूल्स के बारे में बता सकते हैं, जो चीजें आपको चाहिए। तो मेक श्योर करना है कि पेरेंट के साथ वो प्रॉपर कम्युनिकेट हो रहा है। हम यहाँ पे एज ए टीचर मार खा रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, फिजिकल क्लासेस के अंदर नहीं हो पा रही। तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे यहाँ पे चैलेंज और बढ़ जाता है। अब ये 2020 अवेयरनेस आपको एज ए टीचर आपको पास होनी चाहिए कि ये 2020 की अवेयरनेस क्या है, और यही अवेयरनेस आपने अपने पेरेंट्स को बतानी है, क्योंकि बच्चा जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो वो घर से ले रहा है ना। तो ये जो रूल है अवेयरनेस 2020 का, ये पेरेंट को भी पता होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर पेरेंट जो हैं वो बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या पेरेंट मॉनिटर कर रहा है? अगर किसी बच्चे का कैमरा ऑफ है, आप बच्चे को तो नहीं देख पा रहे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि पेरेंट बच्चे को मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बार बार आपको ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी, बेटा कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो, माइक बंद कर दो, कैमरा ऑन करो, माइक बंद करो। ये बार बार आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब ये स्टूडेंट को जो आपने एक्सपेक्टेशन बताई गई है वो यही है कि बच्चा जो है रेडी हो और अपना जो है टाइम पे आए। ये नहीं हो कि अपना आधे घंटे का कोर्स क्लास ही पता चला 5 मिनट पहले आ रहा है। नहीं, जो टाइम है, टाइम टेबल जो है उस हिसाब से वो टाइम पे आए। माइक्रोफोन जो है वो बंद होना चाहिए, ठीक है ना, वो बंद होना चाहिए। और जब आप उससे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, तो वो उस वक्त पार्टिसिपेट करे जब आपने उससे पूछा है, ठीक है ना। और ये जो चैट होती है, अब जैसे जूम के अंदर चैट है, जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो चैट का ऑप्शन है, तो लोग जो है वो चैट के अंदर मैसेजेस डाल रहे होते हैं। ये डिस्ट्रैक्ट करता है, जो क्लास ले रहा है उसको ये डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसने वो आपसे बात कर रहा है ना, वो आपसे बात कर रहा है, और आपने उसको या किसी और को चैट में मैसेज भेज दिया। अब वो मैसेज उसके सामने फ्लैश करेगा ना, तो जब एक चीज फ्लैश करेगी तो वो उसको देखेगा ना, तो उस तरह से वो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि बच्चा जो है उसके पास जो है हर वो चीज अवेलेबल है, नोट पैड वगैरह, ये सारी चीजें उसको उसके पास हैं, ताकि वो जो लेसन दिया जा रहा है उसको नोट कर ले, जो पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें। अब ये सारी की सारी चीजें आपने बच्चों को डेली बतानी है, पेरेंट्स को डेली बतानी है, उस वक्त तक बतानी है जब तक वो इन चीजों को हिफ्स नहीं कर लेते और इसके ऊपर अमल नहीं करते। अब
जो है माँ बाप का इसके अंदर क्या रोल हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो माँ बाप का इसके अंदर हो सकता है वो ये हो सकता है कि घर के अंदर माँ बाप ने वो जगह प्रोवाइड करनी है जहाँ पे बच्चा बैठ के क्लास ले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्वाइट प्लेस। अब सोचना ये है कि माँ बाप जिस घर में बच्चा है उधर कोई क्वाइट जगह है या नहीं है, तो ये माँ बाप ने कर, आप कुछ नहीं कर सकते, ये माँ बाप ने प्रोवाइड करना कि ये उनकी जिम्मेदारी है। फिर अपना माँ बाप ने मेक श्योर करना है कि जो टेलीफोन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो इस काबिल है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास ले सकता है। और माँ बाप ने बच्चे के लिए डेली रूटीन भी सेट करने के बच्चा कब उठेगा, क्योंकि ज्यादातर इशू जो आया था वो ये आया था कि जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो उसमें जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि बच्चे जो हैं वो रात के 2 बजे तक तो उठे हुए थे, और रात के 2 बजे या 1 बजे सो रहा है और सुबह 8 बजे या 9 बजे क्लास है, बच्चा तो सो रहा था। तो वो पूरा का पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था। तो ये भी श्योर करना है कि बच्चे की जो क्लास है जिस टाइम पे शुरू होगी, बच्चे के पास जो रेस्ट का टाइम था, सोने का जो टाइम था, उसने उसको अच्छे से अचीव किया है। और ये चीज जो है माँ बाप ने सेट करना है कि बच्चा सोएगा कब, उठेगा कब, क्लास कब लेगा, तो ये घर की चीजें वो करना है। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, ये एक्सक्यूज नहीं है, या मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है, ये एक्सक्यूज नहीं है। घर वालों को पता होता है यार कब उसका फोन का बैलेंस खत्म हुआ, कब इंटरनेट का बैलेंस खत्म हो गया, ये तो घर वालों को पता है ना। तो उसको प्रॉपर पहले से अरेंज करके रखो ना। आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपका इंटरनेट का बैलेंस खत्म हो गया, तो उसको किसने भरना है? आपने भरना है ना। तो उसको भरो ताकि आप बच्चे की एजुकेशन के लिए उसकी हेल्प कर सको। और चीजों को ऑर्गेनाइजेशन वाली बात आ गई ना, घर में भी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। हमारे पास बच्चे को मोटिवेट करने का बेहतरीन तरीका है, और हम सब लोग एज ए पेरेंट इसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। टीचर आई डोंट नो, टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर माँ बाप के लिए ये बड़ा आसान, और बच्चा ऐसे चुटकियों में मोटिवेट हो जाता है। कुछ पता है वो कौन सा तरीका कौन सा तरीका है? ये तरीका है, एक लगाएंगे बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, खुद पढ़ना शुरू कर देगा। तो बच्चे को मोटिवेट भी करना है। और ये कैसे होगा बेटा, ये एज ए टीचर ये इंफॉर्मेशन, ये ट्रेनिंग जो है आपने माँ बाप को भी देनी है, उनको भी सिखाना है, क्योंकि टीम वर्क हो रहा है ना, स्पोर्ट में काम हो रहा है ना। आप पेरेंट्स की सपोर्ट कर रही हैं, पेरेंट आपकी सपोर्ट कर रहा है, और आप दोनों मिलके बच्चे की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर माँ बाप आपसे क्वेश्चंस कर देते हैं तो बेटा आपकी जिम्मेदारी है प्रॉपर तरीके से उस कम्युनिकेट किया जाए। आपने माँ बाप के साथ कनेक्ट रहना है। किस तरह से करना, देखिए एज ए प्रोफेशनलिज्म की हमने बात की थी, आपको बड़ा प्रोफेशनल रहना है। आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने पेरेंट्स के साथ उनके साथ, अगर मिसाल के तौर पे लॉकडाउन लग गया, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन
लग गया, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, पेरेंट घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आपने जब पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, नॉर्मल स्कूल टाइम क्या होता है, सुबह 8 से लेके 2 बजे तक का नॉर्मल यही टाइम होता है ना। तो आपने पेरेंट्स के साथ जो कम्युनिकेट करनी है चीजें, तो इस टाइम पीरियड में करना है। प्रोफेशनलिज्म, ये आपका स्कूल का टाइम है, उसके अंदर आप माँ बाप के साथ बातें कर रहे हैं। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अगर आप माँ बाप को कोई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, तो बेटा ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता। ये चीज शो कर रहा होता है कि आप एज ए टीचर कितने डिसऑर्गेनाइज हैं। आप अपनी कमजोरी माँ बाप को बता रहे होते हैं। तो जब ये चीज माँ बाप को पता चलती है, उनका आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो आपने प्रोफेशनलिज्म के साथ प्रोफेशनली जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम है, उसके अंदर आपने माँ बाप के साथ कम्युनिकेट करना है और प्रॉपर कम्युनिकेट करना है। अब ये जो 2020 का जो रूल था वो क्या है? आपने, क्योंकि आप घर में नहीं है, आप अपने पास अपने घर में माँ बाप बच्चे के साथ है, तो ये रूल ये है कि हर 20 मिनट के बाद आपने बच्चे को ये कहना है कि 20 फीट के फासले पर कोई जो चीज रखी हुई है उसको 20 सेकंड तक देखे। हर 20 मिनट के बाद 20 फीट के फासले पे जो चीज है उसे 20 सेकंड तक देखे। इससे ये होता है बच्चे को ब्रेक मिल जाती है, बच्चे का माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है, और ये जो कांस्टेंट आप मॉनिटर को देख रहे होते हैं वो चीज से आपको ब्रेक मिल जाती है। तो ये 2020 का जो रूल्स है वो ये है। अब आपके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंज जो आ जाता है बेटा वो ये आ जाता है कि हम फ्री टूल्स को ढूंढते हैं। फ्री टूल्स हमें चाहिए होते हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा फ्री चीजें अवेलेबल या दे रहा है वो गूगल दे रहा है। दूसरी भी है मगर उसमें आपको हर एक चीज नहीं मिलती। तो अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप जो है गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गूगल आपको ऑनलाइन टीचिंग के लिए फ्री टूल्स दे रहा है। मगर बेटा ये देखिए, ये फ्री में तो है, आप अपना जीमेल का अपना क्या कहते हैं अपना अकाउंट बनाते हैं, आपको ये सारी चीजें एक्सेस में आ जाती हैं। मगर इस पे काम कैसे करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। आपने गूगल क्लासरूम आपको मिल गई है मगर आपको इस्तेमाल करना ही नहीं आता तो बेकार हो गया ना बेटा। यहाँ पे आ जाती है प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको कौन हेल्प कर सकता है? आपका कोई दोस्त हेल्प कर सकता है, और सबसे आसान जो है आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें सब पता है, आप अपने बच्चों से हेल्प ले सकती हैं। अगर आप अपने बच्चों से हेल्प नहीं ले सकती किसी भी वजह से, तो आपके स्कूल के अंदर आपको इस चीज की हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, और करनी भी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट को, क्योंकि ये अब आपका काम है, आपके पास टूल्स है, और ये ट्रेनिंग के जुमरे में आ जाता है। आप ये ट्रेनिंग करें और अपने आप को इन्हेंस करें, अपने स्किल को इन्हेंस करें, ताकि जब आप बच्चे से ऑनलाइन बच्चे के साथ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। बच्चा हमें देखता है और हमें देखते साथ ही बता देता है आज टीचर प्रिपेयर है या नहीं है।
जब आप एज ए टीचर प्रिपेयर नहीं होते तो बच्चे जो हैं बिहेवियर इशू लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी कमजोरी जो है बच्चे के हाथ में आ गई। अब याद करें ना, जब आप लोग छोटे थे, जब आप क्लासेस में होते थे, स्कूल जाते थे, तो आप भी तो टीचरों को टफ टाइम देते थे कि नहीं देते थे? देते थे ना। हम सब ने दिया, हम सब ने अपने टीचरों को टफ टाइम दिया है, और ये इस वजह से दे रहे होते थे कि हमें पता है टीचर सही तरह से समझा नहीं रहा, या टीचर की तैयारी पक्की नहीं है। उस जमाने में चीजें कुछ और थी, आज के दौर में चीजें कुछ और हैं। आज के दौर में आप जेन जी और अल्फा को समझाओ, वो बेटा इस तरह चुटकियों में पकड़ लेते हैं टीचर तैयार है या नहीं है। तो ये चीजें अब आपने देखनी है कि आपको कमांड होनी चाहिए, जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कमांड होनी चाहिए, और ये फ्री के उसमें से बाहर निकले। अगर कोई पेड टूल आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेटा आप अफोर्ड कीजिए, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी। अब ये कुछ टूल्स हैं, अपना कंप्यूटर चाहिए आपको, लैपटॉप चाहिए या टैबलेट चाहिए, वेब कैम चाहिए, माइक चाहिए, आजकल के तो जो टेलीफोन आ रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। मगर ये कुछ गेट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपके साथ इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप है, मेरे पास ये सारी की सारा सेटअप किया हुआ है, तो आपको भी ये चीजें करनी है। अब देखें, ये पार्टनरशिप है टीचर्स की, स्कूल की, पेरेंट्स की और स्टूडेंट की। ये पार्टनरशिप है कि आप किस तरह से बच्चे जो हैं आप इनको किस तरह से आप मिलके काम करेंगे, और इसके अंदर जो है ट्रस्ट आएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आएगी, कम्युनिकेशन आएगा। तो ये सारे एलिमेंट मिला के एक पार्टनरशिप बनती है। अब देखें, टीचर और पेरेंट किसके लिए काम कर रहे हैं? बच्चे के लिए कर रहे हैं। अगर टीचर और पेरेंट के अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, या ट्रस्ट बिल्डअप नहीं है, या एक दूसरे को टीचर और पेरेंट रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो इफेक्ट कौन हो रहा है? स्टूडेंट हो रहा है। क्योंकि आप दोनों पेरेंट और टीचर मिलके बच्चे को सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। ये नहीं कि स्कूल में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ टीचर पढ़ा रहा होता है ना, पेरेंट्स भी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है, और माँ जो है वो घर में है। तो आप दोनों मिलके बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। तो अब आप दोनों ने ये मेक श्योर करना है कि आप किस तरह से बच्चे को सिखा रहे हैं, और यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रही है। अब एज ए टीचर आपने मेक श्योर करना है कि ऑनलाइन करिकुलम जो बना हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन चीजें जो है, करिकुलम जो है मेन करिकुलम से डिफरेंट होता है। ठीक है, आपको टॉपिक्स आपने क्या पढ़ाने हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने लेसन जो देना है, लेसन प्लान क्रिएट करने हैं उसके पता होना चाहिए। एक्टिविटीज क्या करनी है, वर्कशीट्स कौन सी बनानी है, असेसमेंट का क्या तरीकाकार होगा, ये सारी की सारी चीजें एज ए टीचर आपने उस मेन जो अपना जो है क्या कहते हैं फोल्डर है उसके अंदर डाल देना।
आपको याद रखना है कि आपके पास टाइम कितना है, उस टाइम के अंदर आप लोगों ने एज ए टीचर बच्चों को सिखाना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एज ए टीचर, आपने स्माइल करनी है, और वो हम नहीं करते। पता नहीं ऐसा होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं, जब अपनी क्लास में होते हैं, तो हमारी स्माइल जो होती है वो ऐसा लगता है कि चोरी हो गई है। यकीन माने, स्माइल करने में कोई खर्चा नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप स्माइल करोगी ना तो बच्चे भी आपको स्माइल में रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये अगर आप कर रही हैं तो आप बेस्ट टीचर हैं। कीप इट अप। अब ये है एज ए टीचर आपका क्या रोल होगा, पेरेंट का क्या रोल होगा, अपना प्यूपल का, स्टूडेंट का क्या काम होगा। तो ये सारी की सारी इसको जो है हैंड आउट में मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। ये आप देख लीजिएगा। इसको एक्सप्लेन करना यहाँ पे जो हमारे पास टाइम लिमिट है उसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर इसको आप देखेंगी, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। बेसिकली वो जो ऊपर हमने वो बताया था कि पार्टनरशिप है, यहाँ पे टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट की क्या है, और बच्चे का क्या काम है, ये मिला के वो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना। तो ये है। अब आपको काम करने में मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। मैंने कहा ना, शुरू में बताया था ना, टीचर के पास डेली जो है चैलेंज आएगा। टीचर के पास डेली चैलेंज आएगा। पहली चीज क्या, आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा, आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, आपका बैलेंस खत्म हो गया, आपके मोबाइल के ऊपर कोई इशू आ गया, ये आ जाएगा। आपको लिटरेसी, कंप्यूटर की लिटरेसी का नहीं पता। फॉर एग्जांपल वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना वो नहीं पता, आपको गूगल को किस तरह से इस्तेमाल करना वो नहीं पता। तो ये ऑब्स्टिकल है। पाकिस्तान के अंदर तो बिजली तो ऐसे जाती है, ऐसे पाकिस्तान में ऐसे बिजली चुटकियों में बिजली जाती है, जैसे वो हम कहते हैं ना, गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे जाती है। अब ये भी इशू है। तो क्या आपके स्कूल के अंदर जनरेटर है, या आपके घर के अंदर कोई जनरेटर है? तो ये भी चैलेंज है। आप अपने लेसन को रिकॉर्ड कर सकती हैं, यूट्यूब पे डाल सकती हैं। लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं आप लोगों को। अगर आप, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यूके में हूं, आप लोग पाकिस्तान में हैं, ये तो मैं कराची से हूं तो उर्दू में बात कर रहा हूं। अगर मैं इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूं, हो सकता है कुछ लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी ना आती हो, तो लैंग्वेज बैरियर आ गया। ठीक है ना। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी नहीं है प्रॉपर, आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, आपके पास इंटरनेट का इशू आ रहा है। ठीक है ना। आपको टाइपिंग नहीं आती। हम चीजें अपना क्या कहते हैं, टेलीफोन के ऊपर हम बड़ी तेजी से अपना जो है वो टाइप कर रहे होते हैं ना, इस तरह। मैं पीछे पाकिस्तान आया तो मेरा भांजा जो था, हम लोग बात कर रहे थे, वो मेरे भांजे के पास टेलीफोन था, मुझसे बात भी कर रहा और इस तरह टाइप भी किए जा रहा। मैं कहा तेरे हाथों को क्या हो रहा है? कहते मामू मैं मैसेज भेज रहा हूं। मसला ये है
कि वो सारी रोमन उर्दू है ना, रोमन उर्दू में हम इस तरह टाइपिंग कर रहे होते हैं, मगर जब बात आती है प्रॉपर इंग्लिश में टाइप करने में तो हम इस तरह कर रहे होते हैं, है क्या नहीं? तो आपको अपना ये जो टाइपिंग का स्किल है बेटा, इसको कर लो, ये बहुत फायदे में रहो, बेहतरीन स्किल है टाइपिंग, इसको सीख ले। रोमन उर्दू तो कर ही रहे हो ना, तो एक प्रॉपर इंग्लिश की टाइपिंग सीख ले। तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको आएंगे, अब इनके आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड जो है वो ये है कि स्कूल वाले जो हैं अब आपको अपना ट्रेनिंग दे, ये बड़ा जरूरी है। बगैर स्कूल मैनेजमेंट के इन्वॉल्व हुए ऑनलाइन टीचिंग मुश्किल हो जाएगी। ब्लेंडिंग लर्निंग की जा सकती है, ब्लेंडिंग अप्रोच की जा सकती है। ब्लेंडिंग के अंदर ये होता है कुछ ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, कुछ फिजिकल हो जाती है, मगर एज ए टीचर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके स्कूल मैनेजमेंट जो है आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती किसी वजह से भी, तो एज ए टीचर ये बेटा आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाएं और ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, और आपको प्रॉपर रेगुलरली एक्सक्यूज मी रेगुलरली आपको अपनी स्ट्रेटजीज और टीचिंग स्किल को इनहेंस करना, नए टूल्स जो आ रहे हैं उनसे आपको फेमिलियर होना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको मास्टर करना है। ये एज ए टीचर आपका काम है बेटा, आप इससे छूट नहीं सकती, ठीक है? आपने पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है, किस तरह से करना है वो आप स्कूल के अंदर अपना पेरेंट्स के लिए कोई वर्कशॉप रख सकती हैं जिसमें आप पेरेंट्स को एजुकेट करें, और ये भी उनको मोटिवेट करना है पेरेंट्स को भी कि वो भी आजकल की जो नई चीजें आ रही हैं, एजुकेशन चेंज हो गई है बेटा, उसको सीखें, ठीक है? और स्टूडेंट्स जो हैं इसके अंदर लीडिंग रोल ले सकते हैं। वो एक कॉल है, सेइंग है, रास्ता पूछने से मत घबराओ, रास्ता पूछने से मत घबराओ वरना रास्ता खो बैठोगे। हम रास्ता ही नहीं पूछते, सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि हम रास्ता नहीं पूछ रहे। तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो हैं बच्चों के लिए, देखो हमारा काम सिर्फ बच्चे, हमारे लिए बच्चे हैं, तो एज ए टीचर आप लोगों ने अपने आप को इनहेंस करना है, अपने टीचिंग स्किल को इनहेंस करना है ताकि आप बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट कर सकें और उनके पेरेंट्स को कर सकें। अब हम जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा एकेडमी है टीचर ट्रेनिंग की, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर, ज़्यादातर तो अब तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, ऑफलाइन ट्रेनिंग तो नहीं हो रही। हम अपना 21st सेंचुरी का जो हमारा डिप्लोमा है वो हम देते हैं, ECCE के कोर्स हम करवाते हैं, स्पेशल एजुकेशन के वो हम करते हैं, ठीक है ना? आपने यूनिक टीचर कैसे बनना है वो हम आपको सिखा सकते हैं, स्कूल लीडरशिप के हवाले से हम ये करते हैं। और मैं ये अपना
पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर में कर रहा हूँ। मुझे जो एडवांटेज मिल जाती है वो ये मिल जाती है कि मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ वो उर्दू ज़ुबान में देता हूँ, तो वो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान के सिस्टम का पता है, पाकिस्तान में क्या होता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हो ना, तो पता है, तो वो सारा जो है बड़ा इजीली हो जाता है। तो ये हमारे दूसरे डिप्लोमास हैं, ये यूके से यूके के सीपीडी से रिकग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया के अंदर ये कोर्सेज हमारे रिकग्नाइज्ड हैं, तो ये हम डिलीवर करते हैं। और क्वेश्चन आंसर जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है? While sharing screen with student, we cannot focus on the videos. कौन सी वीडियोस की बात कर रही हैं बेटा? अगर मिसाल के तौर पे मैंने इस ट्रेनिंग के अंदर, इस सेशन में कोई यूट्यूब की वीडियो आपको दिखानी है, तो मैं, ये मेरा तरीकाकार है, पहले मैं उस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ और अपनी ट्रेनिंग के अंदर डाल देता हूँ, स्लाइड का हिस्सा बन जाती है। और वहाँ पे अब जैसे ये कैमरे ऑन है, मेरा कैमरा ऑन है, मैंने स्लाइड शेयर की भी है और यहाँ पे वो वीडियो चल पड़ेगी। तो अगर आपको कोई और चैलेंज है, कुछ और पूछ रही है, तो बेटा उसे जरा क्लैरिफाई कर दे ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। थैंक यू बेटा। और कोई क्वेश्चन? जी साइमा, थैंक यू वेरी मच बेटा। आपने अगर कोर्सेज करने हैं या उसके हवाले से बात करनी है, क्योंकि हमारा ये जो सिलसिला है ASK के साथ कोलैबोरेशन में है, तो आपने जो भी कोर्स रिलेटेड या वर्कशॉप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं बेटा, आपने ASK को फॉरवर्ड कर देना है, ताकि फिर हम उस हिसाब से आपको इन चीज़ों के हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकें। तो कुछ भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट मंथ भी हम कोर्स चला सकते हैं। वीडियोस ऑफ स्टूडेंट्स, क्या मतलब बेटा वीडियोस ऑफ स्टूडेंट्स से क्या मुराद है आपकी? बेटा पेरेंट्स को एजुकेट कैसे करना है ऑनलाइन के हवाले से, ये तो बड़ा आसान है, उनके बच्चों को तो आता है ना सारा कुछ, तो बच्चों के साथ बैठे और उनसे सीख ले। हम कम्युनिकेट नहीं करते। अब हमें पता है कि ये चैलेंज है कि माँ बाप को प्रॉब्लम है ऑनलाइन के हवाले से या इंटरनेट के हवाले से, हमें पता है ये चैलेंज है, तो ये स्कूल वाले क्यों नहीं पेरेंट्स को की एक क्लास, स्कूल के अंदर एक वर्कशॉप करवा सकते हैं जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दे दें।
اور جب اگر اسکول والے اس طرح سے کریں گے پیرنٹس کے لیے تو وہ پیرنٹس جو ہیں ان کا اسکول والوں کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ بن جائے گا. ہمیں یہ چیلنج کا پتہ ہے مگر اس کی یہ جیسے میں نے بتایا نا اسکول ٹیچر پیرنٹ ہم سب مل کے بچے کے لیے کر رہے ہیں نا تو یہ اسکول والوں کو انیشیٹو لینا چاہیے اور بڑا اچھا انیشیٹو ہوگا. 1-2 گھنٹے کی اپنا ورک شاپ کروا دی اور اس کے اندر بتا دیا پیرنٹس کو کہ کس طرح سے آن لائن کرنا ہے. جی اور کوئی سوال؟ نہیں پیرنٹ اٹینڈ نہیں کرتے بیٹا. آپ نے پیرنٹس کو دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پیرنٹ اٹینڈ نہیں کرتے. یہاں پہ بیٹا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ ٹرسٹ کا آ رہا ہے. ہم پیرنٹس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں یا پیرنٹس کو جب بلاتے ہیں اسکول کے اندر جب انوائٹ کرتے ہیں تو وہ دو وقت کرتے ہیں. ایک پی ٹی ایم میں انوائٹ کرتے ہیں, دوسرا جب پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹ کو بچے کے حوالے سے کوئی شکایت کرنی ہوتی ہے تو اس کو اس وقت انوائٹ کرتے ہیں. تیسرا مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو کہ جب ہم پیرنٹ کو بلاتے ہیں. جب آپ فری میں ورک شاپ دیں گے آپ نے کرنا کیا ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 بچہ ہے اسکول کے اندر تو آپ کیا 100 پیرنٹس کو بلاؤ گے ایک ساتھ؟ ہو ہی نہیں سکتا بیٹا. آپ نے 5 یا 10 پیرنٹس کو بلانا ہے. جب آپ وہ 5-10 پیرنٹس آ جائیں گے اور آپ نے انہیں کوالٹی چیز سکھا دی, کوالٹی بتا دی آپ نے, آپ کی جو ایجوکیشن جو بھی آپ کی پریزنٹیشن ہے جو بھی دے رہا ہے اس نے کوالٹی سے ان کے سوالوں کا جواب دیا, ان کو چیزیں سکھا دی اور آخر میں انہیں آپ نے چائے کے ساتھ کچھ پیٹیز وغیرہ کھلوا دی. تو آپ یقین مانے باہر نکل کے پورے محلے میں وہی آپ کے ٹیچر پیرنٹس جو ہیں دوسروں کو بتائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے اب جیسے 100 بچہ ہے تو 100 ماں باپ ہو گئے نا, تو آپ نے 10-10 کے ماں باپ کا بیچز بنانے ہیں اور اس طرح سے ہر ایک کو یہ انفارمیشن دینی. بیٹا اس کو سسٹمیٹکلی کیا جاتا ہے. اس کے لیے موٹیویشن اور پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے. بہت اچھا کویشچن ہے عدنان بھائی. واٹ از دی بیسٹ ٹائم ٹو مارک اسٹوڈنٹ اٹینڈنس؟ اب یہ جو ہے یہ آپ نے اپنے رولز کے اندر اور روٹین کے اندر بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو بتانا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شروع کے 5 منٹ کے اندر جو بچے آ گئے ہیں آپ ان کی اٹینڈنس لے سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے جب آپ کی کلاس ختم ہو جاتی ہے تو زوم کے اوپر اور اسی طرح سے گوگل کے اوپر بھی آپ کو ایکسیس مل جاتا ہے رپورٹ کا کہ کون کون بچہ آپ کے اس سیشن کے اندر موجود تھا. آپ وہ اٹینڈنس کی انفارمیشن وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا جو لیسن ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے تو آپ نے پیرنٹس کو یہ بتا دیا کہ جو 25 منٹ تک کلاس کے اندر موجود ہوگا تو اس کی اٹینڈنس پریزنٹ میں لگے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے وہ چیز کر لی, آپ کے پاس رپورٹ آ گئی. اب آپ اس کو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا بچہ
आपकी क्लास में मौजूद था और कितने वक्त तक था। इस तरह से आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल आता है कि सर इतना टाइम कहाँ है, अगर 30 बच्चे हैं तो उन 30 बच्चों को रेगुलरली चेक करना कि क्या है क्या नहीं, कितना पास। तो बेटा आप वो रिपोर्ट जो है चैट जीपीटी में डाल दो, उससे पूछ लो कौन कौन सा आया था, कौन कौन सा नहीं था, वो 2 मिनट के अंदर आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। जी, और क्वेश्चन करने से शर्माना नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है साइमा, क्वेश्चन करते रहो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडल्ट स्टूडेंट से क्या मुराद है आपकी बेटा, और वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं सका। Who will be involved? कुछ एक्सप्लेन करो बेटा प्लीज। I'm not going to reply to this question बेटा, I'm sorry। यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट के लोग भी मौजूद हैं और आई डोंट वांट टू, अनफॉर्चुनेटली इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि स्कूल मैनेजमेंट जो है इम्पोर्टेंस नहीं देती। सॉरी, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। इसका जवाब है मेरे पास पर दूंगा नहीं। पेरेंट्स के बारे में आपने कहा कि पेरेंट को इवनिंग में मैसेज करेंगे तो टीचर सीम्स लाइक अनमैनेज, सो व्हाट इज द टाइम टू कम्युनिकेट द पेरेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका बेटा जवाब ये है कि आपका स्कूल लगता है सुबह 8 से 2 बजे तक, ये टाइम है। आप 3 बजे तक कर सकते हैं, 4 बजे तक कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते ना, ये अनप्रोफेशनल हो जाता है। और पेरेंट को बता दें कि आपको हम मैसेज करेंगे 4 बजे तक, उनको भी पता होगा। ये कम्युनिकेट किया जाता है बेटा, कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप शाम 12 अपना रात 12 बजे मैसेज डाल देते हो तो वो तो सो रहे हैं, वो मैसेज कब देखेंगे आपका और कब रिप्लाई करेंगे? हमने मैसेज डाल दिया, हमारा जिम्मा खत्म हो गया, अब वो पेरेंट के ऊपर है वो देखे या ना देखे। नहीं, इस तरह से हम जो है ब्लेम गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। जो अप्रोप्रिएट टाइम है उस टाइम के अंदर आप मैसेज करें ना। रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप नहीं कर सकते क्योंकि वो लोगों का पर्सनल और प्राइवेट टाइम होता है। क्या समझे? तो ये हम नहीं कर सकते। हमने वर्क और प्लेजर जो है, लाइफ जो है ना, उसको बैलेंस करना है। जी, और क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा। देखें, टीचर्स जो हैं वो भी पेरेंट्स हैं या नहीं है कि नहीं? टीचर भी पेरेंट्स हैं और वो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं। तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, तो एडल्ट्स जो होते हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस
का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ होता है छोटे बच्चों की। अब आपके साथ जो हम ये सेशन कर रहे हैं ये एडल्ट्स के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ नहीं हो रहा। क्या समझे? तो मैं जब अव्वल तो मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता नहीं हूँ। ये आप लोग बहुत अजीम काम कर रहे हो यार, बहुत अजीम काम कर रहे हो जो टीचर हैं, जो इन छोटे छोटे फूलों को एज ए माली आप इनको पानी दे रहे हो, तो बहुत अजीम काम कर रहे हो आप लोग। तो उनको पढ़ाने का तरीका मुख्तलिफ है बनिस्बत बड़ों के। इफ अटेंडेंस taken in start and end in the same pattern, daily student either come late, if taken at the end they sleep. देखो ना बेटा, आपको बताया ना, आपके पास रिपोर्ट आती है, जूम के ऊपर आपको रिपोर्ट मिलती है कि आपका कौन सा स्टूडेंट था और कितना टाइम वो आपकी क्लास में प्रेजेंट था, बैठा हुआ था। तो वहां से आपको टाइम मिल जाएगा। फिर कैमरे भी तो ऑन रखने हैं ना हमने, तो वो चीज भी आपको मिल जाएगी। और आपने बता दें कि 25 आधे घंटे का टाइम है, तो 25 मिनट जो क्लास के अंदर मौजूद है उसकी अटेंडेंस लगेगी कि वो प्रेजेंट है। 25 से कम है या 20 है या 15 है तो वो एब्सेंस में आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 25 अपना 5 मिनट के बाद आप लोग, अगर मिसाल के तौर पे 10 बजे का लेसन है, आप 5 मिनट तक इंतजार करोगे और उसके बाद कोई अंदर नहीं आ सकेगा। आप ये भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है बेटा कि आप लोग किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। जी, और कोई सवाल? ठीक है जी, ये मेरे नंबर हैं। अगर आपने मुझसे राब्ता करना है, आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मगर मैं ये चाहूँगा कि आपने जब भी राब्ता करना है तो ये ASK के थ्रू आइएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जी, आप ASK के थ्रू आइए। ये जो इनका व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप कांटेक्ट करें। जैसे मैंने कहा, हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, हम कोर्सेज करते रहते हैं। अभी मेरा आज 5 तारीख है ना, 5 तारीख है, 14 तारीख को इंशाल्लाह ताला हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लासेस चलती रहती हैं। तो ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। आई होप मैंने इस सेशन के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे अब इजाज़त दीजिए। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।